Welcome back, all of you. Today we'll resume our previous class. कल हमने जनरल कैरेक्टर्स किए थे बॉडी कैविटी तक यानी कि नाइन्थ तक. आज हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं. कल द लास्ट कैरेक्टर वी स्टडीड वाज बॉडी कैविटी. करेक्ट. नाउ टुडे we'll resume the next character. If you see today, we will start with alimentary canal or gut. Just a minute. That is gut, or also known as alimentary canal. Here if you see alimentary canal in case of arthropoda, it is complete and coiled. Because since it is coiled, so the length of the alimentary canal is longer than the body length. Right, it is always longer than the body length. And mouth and anus, they lie in opposite direction. Gut is differentiated into three parts. First part, foregut, also known as stomodium. Middle part, known as midgut. Another name for midgut is mesenteron. This is E. And hindgut, also known as proctodium. Stomodium and proctodium, if you see, they are formed from ectoderm. And mesenteron, if you see, it is formed from endoderm. Correct. Now, if you see, I'll just show you. Just see. This is alimentary canal of cockroach. Head is, if you see if this is cockroach, this is head. Then this is the thorax part, and this is the abdomen part. That is why head is not seen, because head is head is having ventral mouth, so ventral mouth could not be seen. So if you see, it starts with the mouth, then this is the pharynx, this is crop. If you see that right from mouth to crop region, to gizzard, can you see, this is gizzard, this just behind mouth is gizzard. Mouth to gizzard forms the foregut. If you see over here, certain thick thread like structures are there, known as hepatic caecae. Then again you see minute thread like structures known as Malpighian tubule. So the area of alimentary canal from hepatic caecae or hepatic cecum to Malpighian tubule comprises midgut area. And the remaining portion behind, that is ileum, colon, rectum, it forms the hindgut part of the alimentary canal. Correct? So this way, if you see, these are the different parts of the alimentary canal. Foregut is made up of mouth, pharynx, salivary gland, esophagus, crop, and gizzard. This hepatic caecae, midgut or Malpighian, this particular portion is hindgut, midgut, sorry, and the remaining portion is hindgut. Correct. Now, if you see that mouth is, now we come to the mouth part. Mouth is associated with different mouth parts. Here you will see complicated mouth parts. What do you mean by complicated? Means mouth part are not simple like us. Just see if you see like us, we have upper lip, lower lip, tongue. These are or only mouth parts. But in case of insects, they consist of number of parts which comprises mouth parts. I'll show you. Just see. These are the mouth parts of cockroach. Can you see?
that single opening of mouth part, if we observe minutely, it consists of upper lip known as labrum, lower lip known as labium. In the middle is tongue known as hypopharynx. On the side of the labiums are mandible, also known as teeth of the cockroach. Just below mandible and behind labium are pair of maxilla. If you see, the maxilla consists of two sharp edges, inner galea, outer lacinium. These are the maxillary palps, which is sensory in nature. So you see that these are the different mouth parts. The mouth part of cockroaches are considered as basic type of mouth parts. Why basic? Because it is these mouth parts which are modified in different insects according to their feeding habits. ऐसे माउथ पार्ट्स किस में होते हैं? ऐसे माउथ पार्ट उन इंसेक्ट्स में होते हैं जिनके जो फीडिंग हैबिट है वो क्या करते हैं, अपने फूड को बाइट करते हैं और च्यू करते हैं. यानी कि ये माउथ पार्ट्स किसके लिए हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं जो कि कॉकरोच में पाए जाते हैं. करेक्ट. नाउ इफ़ यू सी, दिस इज़ मॉस्किटो. अब आप देखो कि मॉस्किटो में जितने भी माउथ पार्ट्स थे वो सारे जो हैं कैसे हैं? निडल लाइक हैं. यानी कि हम इनको स्टाइलेट्स भी बोल सकते हैं. वाई दे आर निडल लाइक? बिकॉज जो मॉस्किटो है, दीज आर द माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो जो है ब्लड में, अपनी स्किन में पियर्स करता है और फिर ब्लड को सक करता है. तो इसके जो माउथ पार्ट कैसे हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. अब क्या होता है, ये सारी निडल होती हैं, ये सारी निडल इकट्ठी होकर क्या करती हैं? पॉइंटेड एंड बनाती हैं और होस्ट में पियर्स करती हैं स्किन के अंदर, राइट. और पियर्स करने के बाद इनकी जो टंग है, दिस इफ यू सी, दिस इज दिस लेबलम, this central portion, if you see the tongue is modified into labellum. ये जो टंग है ये रिलीज करती है एंटीकोएगुलेंट ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड जो है क्लॉट ना हो. और एंटीकोएगुलेंट रिलीज होने के बाद ये क्या करती है? ब्लड को सक कर लेते हैं मॉस्किटो. तो मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स जो हैं सारे दे आर बीन मॉडिफाइड इनटू निडल लाइक और स्टाइलेट्स सो दैट दे कैन पियर्स एंड सक द फूड और ब्लड, राइट. अब आप देखो, इसमें आप देखो मैंडिबल कैसा है और यहाँ पर आप देखो मैंडिबल कैसा है. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे फीड ऑन, दे चेंज देयर माउथ पार्ट्स, दे मॉडिफाई देयर माउथ पार्ट्स अकॉर्डिंगली. अब आप ये देखो, ये माउथ पार्ट्स हैं हाउस फ्लाई के. इसमें कैसे हैं? स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. कई बार इनको स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग टाइप बोलते हैं. इसमें आप देखो क्या है कि जो टंग है दैट इज़ बीन मॉडिफाइड इनटू लेबलम. तो ये जो लेबलम पार्ट है आगे जो है, ये जो पोर्शन है दैट इज़ स्पंज लाइक. स्पंज लाइक में क्या होता है कि ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं फूड के ऊपर, उस फूड को लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करने के बाद हॉस्टलम की हेल्प से दे सक इन और दे लैप इन. इसलिए कई बुक्स में स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स भी कहते हैं हाउस फ्लाई के अंदर. तो तुम्हें पता है हाउस फ्लाई हमेशा मीठी चीज़ों पर आती है, तो उसको लिक्विफाई करते हैं फूड को with the help of labellum and they suck in. Such type of mouth parts are known as sponging type of mouth parts. Next, if you see, these are the mouth parts of honeybees. honeybees देखो, honeybees क्या करती है? नेक्टर पर फीड करती है ना, तो फ्लावर के अंदर जाती है और वहाँ पर नेक्टर को सक करती है. तो यहाँ पर आप देखो जो लेब्रम, देखो ये अपर लिप इट इज़ एज सच. ये मैंडिबल आप देखो साइड में है जो मैंडिबल का यहाँ इतना कोई फंक्शन नहीं है. मैग्जिला, लेबियल प्लैप, प्रोबोसिस इज द टंग, glossa is the tongue. If you see, ये जो है they have been modified and they form a pipe like structure so that they can suck the nectar. तो इस तरह के जो माउथ पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. तो हनी बीज में किस तरह के माउथ पार्ट्स हैं? लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट, इफ यू सी, दीज आर द माउथ पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ. क्या करते हैं बटरफ्लाई क्या करेगी? बटरफ्लाई, अगर आप इमेजिन करो कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये उसके पेटल्स हैं, राइट.
तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्टर कहाँ, यहाँ पे ओवरी वगैरह होती है, नेक्टर यहाँ बेस में होता है ना, तो मॉथ और हनी भी इतने लार्ज होते हैं, हनी भी तो क्या है, छोटी होती है, तो दे कैन, हनी बी कैन एंटर एंड सक नेक्टर ओवर हेयर, बट butterfly or moth, they are large, their size is large enough, they cannot enter into the base of the calyx, वो फ्लावर की बेस में एंटर नहीं कर सकते. सो व्हाट दे डू इज़, ये देखो अपने माउथ पार्ट्स को इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि दैट दे फॉर्म सिफन, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे सिफन. तो ये क्या करेंगे अब, उसको ना ट्यूब को इस तरह से ऊपर से ही रिलीज़ करेंगे. अदरवाइज पता है क्या होता है कि माउथ पार्ट्स के नीचे कभी तुम नोटिस करना, इस तरह जो है इनकी सिफन कॉइल्ड रहती है. जैसे ही ये फ्लावर के पास आते हैं, दे अनकॉइल द माउथ पार्ट्स एंड द सिफन रीचेज द बेस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम वेयर दे सक नेक्टर. राइट. सो आप देखो कि जो माउथ पार्ट्स हैं बटरफ्लाई और मॉथ में, इस तरह के माउथ पार्ट बने जिनको हम कहते हैं सिफनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. राइट. सो here you see that mouth parts के modification के basis पे the basic mouth parts they have been modified into different type. Now next characteristic is after alimentary canal, respiration. कल हमने बताया ही था कि arthropods are found everywhere. They are found as high as 20,000 feet, as low as 32,000 deep into the sea. They are found in marine water, they are found in fresh water, they are found in air. Everywhere they are found. So depending on the habitat, they have different type of respiratory organ. Right. If you see in case of terrestrial arthropods में क्या, they have a thick chitin, right, to reduce evaporation of water. सो इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी हो और वाटर को इवेपोरेशन से बचाना हो, वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन. यहाँ पर भी सेम जैसे अपने बॉडी में होता है, इसी तरह छोटी छोटी ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं कार्टिलेजिनस, उनके ऊपर कोलैप्सिंग को अवॉइड करने के लिए कार्टिलेजेस होते हैं, सो दैट दीज ट्यूब्स रिमेन ओपन. अच्छा, और इंसेक्ट्स की वेंट्रल साइड पर देर आर ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स. तो इन स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर जो है वो एंटर करती है, और ये स्पाइरेकल्स जो है अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया बनाते हैं. आई विल जस्ट शो यू द डायग्राम. जस्ट सी, ये मैंने स्पाइरेकल्स बताया था ना, कैन यू सी थोरैक्स में दो पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है जिनको थोरैसिक स्पाइरेकल्स बोलते हैं. बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आर देयर इन द एब्डोमेन. और ये स्पाइरेकल्स आप देखो अंदर जो है एक नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से जुड़े हुए हैं, और थ्रू आउट बॉडी ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी सरफेस से एस्केप कर जाती है. So such type of respiration which is common in terrestrial arthropod is known as tracheal respiration. Right. Now if you see in case of crustaceans, जैसे कि ये वो है प्रॉन है, और इफ़ यू सी फॉर दैट मैटर लॉबस्टर ऑल्सो, इनमें क्या होता है, कैरापेस होता है. अगर हम कैरापेस को लिफ्ट करेंगे, वी फाइंड देयर आर 7 पेयर ऑफ गिल्स. ये देखो, राइट. एंड दीज एनिमल्स दे रिस्पायर बाय गिल्स. ये देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर जो है, जस्ट सी, प्रॉन का ये कैरापेस है. कैरापेस को अगर हम रिमूव करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से वी फाइंड 7 पेयर्स ऑफ gills. Such type of respiration is known as branchial respiration. Because they are aquatic, तो वाटर में जो है गिल्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं, दैट इज वी कॉल एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन. सो इट इज़ फाउंड इन क्रस्टेशन से प्रॉन्स है, लॉबस्टर्स है. राइट. नाउ
जस्ट सी दिस इज स्कॉर्पियन, राइट। स्कॉर्पियन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैन यू सी सर्टेन स्ट्रक्चर्स, these are known as book lungs, राइट। सो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में जो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे आप देखो थोरैक्स में देर आर 4 पेयर ऑफ बुक लंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ बुक लंग्स दे रिस्पायर। ये देखो बुक लंग को अगर एनलार्ज करके देखें तो इस तरह बहुत सारे लेमिली हैं, minute structures हैं with the help of which this is, you know, if you see this is whole one lung which is being slitted into various parts and it is being filled up with the blood. Now ये देखो ये डायग्राम है मीरोस्टोमा का, also known as king crab. Sorry, not मीरोस्टोमा, this is limulus, also known as king crab. Limulus क्या होता है? ये होता है aquatic. So if you see ventral surface पर can you see there are 4 pairs of 1 2 3 4 pairs of gills known as book gills. और जो लिमुलस है या किंग क्रैब है ये मीरोस्टोमेटा में आता है, इसलिए इनको मीरोस्टोम्स भी बोलते हैं, राइट। नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लैंक्टोनिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन पर थ्रू बॉडी सरफेस जो है वो रेस्पिरेशन होती है, बट इन सम ऑफ द जू प्लैंक्टॉन्स जैसे ये वाटर फ्ली है, अब आप देखो वाटर फ्ली में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स में जो रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं रेक्टल रेस्पिरेशन। मैंने कोशिश करी रेक्टल रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की, बट मुझे मतलब मैंने मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। व्हाट आई अज्यूम, मेरा पर्सनल व्यू है। अब आप देखो दिस इज़ द रेक्टम एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसके नीचे आप देखो 2 ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो मुझे लगता है कि ये है दीज आर द पेयर ऑफ गिल्स विच वी कॉल एज रेक्टल गिल्स, और रेक्टल गिल्स की हेल्प से they carry out respiration. That such type of respiration is known as rectal respiration. I am not sure, I am just this rectal gill, this is my point of view only, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसका मटेरियल मुझे मिला नहीं, राइट। सो आफ्टर respiration if you see we come to the next point, that is next characteristic, circulation. एनिलिडा में हमने देखा कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम था, बट हेयर इफ़ यू सी अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम के मामले में दे हैव नॉट अपग्रेडेड, इनफैक्ट दे हैव रेट्रोग्रेडेड। दे आर्थ्रोपोड्स हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर ब्लड लाइज इन ओपन कैविटी नोन एज सिलोम। सिलोम में ब्लड लाई करता है, तो क्योंकि ब्लड वहाँ पर लाई करता है इसको, इसलिए हम हीमोसिलोम भी बोलते हैं। और हीमोसिलोम में जो ब्लड सेल्स है उन्हें हम हीमोसाइट्स भी बोलते हैं, सॉरी सिलोमोसाइट्स भी बोलते हैं। सो इफ़ यू सी दैट हेयर इन केस ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स पर्टिकुलरली, अगर हम कॉकरोच का एग्जांपल लें तो कॉकरोचेस में क्या है 13 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट। अगर हम देखें ये सबसे आगे जो है ऑस्टिया, these are the various chambers, this is dorsal aorta, और ये जो चैम्बर्स हैं इस तरह 13 चैम्बर्स है, साइड में आप देखो ओपन है, दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टियम। सो both the sides there are 2 ostia, so this way if you see the chambers are open and blood enters through body cavity through these ostia and it always moves forward,
and through dorsal aorta it reaches the head. करेक्ट. अगर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर हम कोई भी इंसेक्ट की बॉडी को ट्रांसवर्स कट देते हैं, सो अगर सपोज हमने इसको बॉडी को ऐसे कट दिया, just suppose we have given cut something like this, so the body of the arthropods is divided into 3 chambers. ये dorsal septa है, dorsal septum, this is ventral septum. dorsal और ventral septum की कारण जो बॉडी जो है 3 चैम्बर्स में डिवाइडेड है. सबसे ऊपर वाला चैम्बर, इसमें क्या है, हार्ट है, इसीलिए इसको पेरिकार्डियल चैम्बर भी बोलते हैं. जो मिडिल है यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसीलिए इसको पेरीविसरल चैम्बर भी बोलते हैं. और थर्ड वाले में यहाँ पर क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इसीलिए इसको पेरीन्यूरल चैम्बर भी बोलते हैं. ठीक है. तो अब जो हार्ट है, ये जो मैंने चैम्बर्स दिखाए, ये कहाँ है, दे आर लाइंग इन द अपर मोस्ट चैम्बर, दैट इज पेरिकार्डियल चैम्बर, राइट. और ये जो हार्ट्स हैं, दे आर कवर्ड इन पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम सराउंड्स द हार्ट. So, and the blood in coelom is known as hemolymph. The cells over here, if you see in the hemolymph, they are known as hemocytes. क्योंकि ये ब्लड WBC से मिलते हैं, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज phagocytes, right. और इसके अलावा if you see this hemolymph, they make it may contain pigment like hemoglobin और hemocynin. ज़्यादातर तो जो ब्लड है वो कलरलेस होता है. जैसे हीमोसाइनिन पिगमेंट जो है लिम्युलस में, मैंने देखा था ना, लिम्युलस में होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू कलर. ठीक है. मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. जस्सी, ये देखो कॉकरोच में है, वो डॉर्सल एओर्टा नहीं, वो एंटीरियर एओर्टा. ये आप देखो डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट है थ्रू आउट बॉडी. और ये देखो ये मसल्स हैं, इनको बोलते हैं एलरी मसल्स. ये एलरी मसल्स की हेल्प से हार्ट जो है, एलरी मसल्स हार्ट को अपनी प्लेस पर रखती है, और एलरी मसल जो है कनेक्शन बनाती है किसके बीच में, हार्ट के बीच में और बॉडी वॉल के बीच में, राइट. दिस इज हाउ थ्रू आउट द बॉडी blood is supplied or pumped with the help of these chambers which are present in these heart chambers, right. Now next characteristic, if you see, after circulation comes excretion. इफ़ यू सी, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जो है अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन. बट एक्वेटिक फॉर्म्स जो हैं, क्योंकि एक्वेटिक फॉर्म्स में वाटर की कमी नहीं होती, सो दे आर अमोनोटेलिक, यानी कि देयर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अमोनिया. वेयर इज जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, बिकॉज दे हैव टू कंजर्व वाटर, they are uricotelic. That means their excretory material consists of uric acid. जैसे insects है, centipedes है, millipedes है, scorpions हैं, they are uricotelic. crustaceans हैं, they are aquatic. then एक और मैं आपको इसका पेरीपेटस है. पेरीपेटस जो है ये आर्थ्रोपोड जो है, आर्थ्रोपोड ये it belongs to सब फाइलम ओनिकोफोरा. कई जगह इसको अलग अलग क्लास मानते हैं, कई साइंटिस्ट इसको अलग सब फाइलम मानते हैं.
ऑर्थ्रोपोडा का। एनीवे पेरिपेटस जो है इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। क्यों? क्योंकि पेरिपेटस इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, जिस विच शोज दैट ऑर्थ्रोपोडा जो है कहाँ से अराइज हुए हैं, एनिलिडन से हुए, एनिलिड से हुए हैं, बिकॉज पेरिपेटस में दोनों ऑर्थ्रोपोडन और एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इफ यू different arthropods, they have different excretory organs. I'll just show you. If you see scorpions may, can you see this green color gland? This is known as green gland and this is excretory in nature. So scorpions have green glands as excretory organ. Same way, if you not sorry scorpions, if you see it is this green gland, it is present in crustaceans. Sorry, this is not present in spider, this is present in crustaceans. Crustaceans are aquatic, so this is excretory in nature. In case of scorpions, if you see, can you see this structure known as coxal gland? So scorpions में जो excretory organ है वो है coxal gland, which is terrestrial in nature, scorpions. सेम वे अगर आप देखोगे, मैंने उसमें डायग्राम में भी दिखाया था तुम्हें, एलिमेंट्री ये कैनाल जब वो ये जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर। तो ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सॉरी ऑर्गेनिजम्स में, टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स में दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर। सो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नाउ we come to next characteristic, that is endocrine glands. इन ऑर्थ्रोपोड्स जो है पहले ऑर्गेनिजम्स हैं इन एनिमल किंगडम विच पजेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि एग डाइसिस है, ऑर्थ्रोपोड्स में होता है ना, मैंने बताया मोल्टिंग होती है, शेडिंग ऑफ काइटिन को बोलते हैं एग डाइसिस। तो एग डाइसिस है, या अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर है, राइट, या रेट ऑफ हार्ट बीट है, स्किन कलरेशन है, या फिर कैल्सिफिकेशन है स्केलेटन की। तो इस तरह अब आप देखोगे रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वेरियस एक्टिविटीज़ आर देयर एंड दीज वेरियस एक्टिविटी of arthropods are controlled by endocrine glands. Right, now if you I'll just show you the example of diagram of endocrine gland in case of arthropods. ये आप देखो, ये इंसेक्ट्स में दिस इज ब्रेन. ब्रेन इज ऑल्सो एंडोक्राइन इन नेचर बिकॉज इट possesses cells known as न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स. और ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं? इन टर्न दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. ये देखो, जस्ट इमीडिएटली बिलो ब्रेन देर इज एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज कॉर्पोरा कार्डियाका, अनदर इज कॉर्पोरा अलाटा, and third gland is prothoracic gland. Right, so you see that these are the three endocrine glands which in turn are controlled by secretions from neuroendocrine cells released from the also known as neurosecretory cells released by the brain. Don't say neuroendocrine cell, just call them neurosecretory cells released by the brain, which in turn control these glands. Corpora cardiaca, if you see,
what it does is it secretes growth hormone. It also, as the name indicate, controls heartbeat. It also controls sugar level. Corpora alata, if you see, it secretes juvenile hormone. जुवेनाइल हार्मोन का मतलब क्या है कि ये हार्मोन जो है जितने भी जुवेनाइल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ड्यूरिंग ग्रोथ जो जुवेनाइल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस ग्लैंड नोन एज कॉर्पोरा अलाटा. कॉर्पोरा अलाटम इज सिंगुलर, राइट. देन देयर इज अनदर ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, विच सिक्रीट्स एक्डाइसोन. एक्डाइसोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्डाइसिस के लिए, यानी कि मोल्टिंग के लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है. करेक्ट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फेरोमोन्स. जैसे अभी हमने ऊपर क्या किया था? हॉर्मोन्स किया था. नाउ वी कम टू फेरोमोन्स. सो फेरोमोन्स क्या है? फेरोमोन्स आर द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी. अभी हमने कहा एंडोक्राइन, यानी कि दे आर रिलीज्ड इनसाइड द बॉडी. फेरोमोन्स आर द केमिकल्स रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, secreted by a species, and it is received by the organisms of the same species only. अभी बहुत सारे फेरोमोन्स हमारे एटमॉस्फेयर में. आर वी एबल टू डिटेक्ट देम? नो, वी कैन नॉट डिटेक्ट देम. ओनली those particular species for which the pheromone is released, they can only perceive it. So we can say that pheromones क्या हैं? Intraspecific messengers. जैसे आपने देखा कई बार एक जगह हनी बी ने अटैक किया और तुरंत बहुत सारी हनी बीज इकट्ठी हो जाती हैं. वाई? विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स. सेम वे एंट्स की देखिए एकदम लाइन लग जाती है, बिकॉज दे रिलीज सर्टेन फेरोमोन्स विच इज परसीव्ड बाय द एंट्स ओनली. सो दे कैन मेक अ ट्रेल और परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, राइट. सो दे एक्ट, दिस फेरोमोन्स दे एक्ट एज टेरिटरी मार्कर्स ऑल्सो. तो सी एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स हैं फेरोमोन्स. तो सो दे कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस फेरोमोन्स. दे आर इंडिकेटर ऑफ सर्टेन एक्टिविटी. दे कैन एक्ट एज सेक्स अट्रैक्टेंट ऑल्सो, फेरोमोन्स. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ वी सी इज नर्वस सिस्टम. एनालिड्स में हमने देखा था कि ब्रेन इज मेड अप ऑफ सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग. हेयर ब्रेन, इफ यू नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ब्रेन क्या है? सर्कम ईसोफेजियल नर्व रिंग है. दैट मीन्स क्या हुआ कि ईसोफेगस के ऊपर से एक रिंग जाती है और इस जो ऊपर से होती है, फिर नीचे जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन. और वेंट्रली इट गिव राइज टू गैंग्लियोनेटेड, डबल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. सो ये क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती है. और वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या करेगी? इट विल गिव राइज टू नर्व्स इन ईच segment like this. Here the typical point is that brain is three lobed. Arthropods में जो brain है, it is divided into three lobes. These lobes are, if you see, protocerebrum, deutocerebrum and tritocerebrum. I'll just show you the diagram also. ये देखो, can you see? The brain is differentiated into three lobes. These are the three lobes of the brain, right? Then the brain is connected to the prothoracic gland, and actually these are not the prothoracic gland, and they in turn are connected to the ventral nerve cord. You see, these are the ventral nerve cord. This may be the part of ventral nerve cord.
एंडोक्राइन ग्लैंड में बी लाइंग समवेयर हेयर ओनली. जस्ट ये देखो पोजिशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की यहाँ पर होती है, जस्ट इमीडिएटली बिलो द brain, right? And this is, you can say, ventral nerve cord. This whole is ventral nerve cord, correct? Now next characteristic after nervous system is sense organs. Insects, if you see, they have very well developed compound eyes. आप देखो किसी भी डायग्राम में हेड पर यहाँ पर यू गेट टू सी सच large compound eyes this way. Why they are known as compound eyes, not simple eyes? Because they are made up of many units and each unit is known as ommatidium. So ommatidium itself acts as single eye, यानी कि एक compound eye में बहुत सारी eyes हैं और हर eye जो है अपनी own image बनाती है. So that is why the vision by the compound eye is known as mosaic vision, because हर आई का अपना अलग विजन होता है, ऑल टुगेदर विजन होता है वो मोजाइक विजन होता है, यानी कि एकदम स्लाइट मूवमेंट भी है वो भी डिटेक्ट हो जाता है बाय द ओमेटिडियम, राइट? अपार्ट फ्रॉम सेंस, अभी आपको एक अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ पिक्चर में ओमेटिडियम का, सॉरी कंपाउंड आइज का, या आप देखो ये जितने भी डार्क पोर्शन है, हेयर यू सी, कैन यू सी, दिस इज ऑल compound eyes. Can you see over here also, these are compound eyes. Anywhere if you see, जैसे शुरू में मैंने कल दिखाया था कॉकरोच, कैन यू सी, ये जो डार्क पोर्शन है दैट इज कंपाउंड आई, करेक्ट? Apart from this compound eyes, they have antenna also. Antenna also known as feeler. Pair of antenna are there on the head this way, and they have sensory bristles throughout the length of the body. Antenna. And except कुछ arachnids यानी कि स्पाइडर्स जो हैं उनमें जो है एंटीना प्रेजेंट नहीं होता. उनमें एंटीना की जगह क्या होता है, एक पैक्टिन्स होते हैं. एंटीना एराक्निड्स में पैक्टिन्स होते हैं जो कि एंटीना की तरह काम करता है. और सेम वे इफ यू सी, जैसे मैंने कल दिखाया भी था, ये देखो इसमें ग्रास हॉपर में, ये देखो ये इसकी यहाँ पे ग्रास हॉपर में कल मैंने ये देखो इस तरह ये सिरेशंस दिखाई दे रही हैं. ये सिरेशंस क्या करती हैं, एब्डोमेन के साथ और थोरैक्स के साथ रब करके दे प्रोड्यूस अ साउंड. तो इस तरह के ऑर्गन को बोलते हैं स्ट्राइड्यूलेटरी ऑर्गन. सो कुछ इंसेक्ट्स में ये स्ट्राइडुलेटरी ऑर्गन्स है टू प्रोड्यूस साउंड. सेम वे ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर एक ऑर्गन होता है नोन एज मुलर्स ऑर्गन. और मुलर्स ऑर्गन जो है क्या करता है, हियरिंग में वॉट एवर लिटिल परसेप्शन ऑफ साउंड इज देयर दैट इज डन बाय मुलर्स ऑर्गन. इसके अलावा उनके एनस पर एक छोटी सी अपेंडेज होते जिसको हम कहते हैं एनल सरसाई और सरकाई, जहाँ पर छोटे छोटे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिनको हम कहते हैं सेंसिली, राइट? नाउ वी कम टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. जैसे कि रिप्रोडक्शन में हेयर ऑर्थ्रोपोड्स दे आर डायोशियस, यानी कि मेल एंड फीमेल आर सेपरेट ऑर्गेनिजम्स एंड दे शो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. इसका मतलब क्या है, वी कैन मेक आउट वेदर दिस इज मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म. जनरली दे शो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. गोनाड्स आर पेयर्ड, generally they are paired, and if they show certain copulatory organs known as gonapophysis. मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी.
इंसेक्ट्स में गोनापोफाइसिस होते हैं, गोनोपो एंड दे हैव मेल्स में होते हैं, गोनापोफाइसिस फीमेल में होते हैं और मेल्स में होते हैं गोनोपोड्स. I'll just show you a diagram. ये देखो, ये गोनापोफाइसिस है फीमेल में, राइट. और ये लेफ्ट फेलोमियर, टिटिलेटर, सूडोपेनिस, ये जो है क्या है, ये है गोनोपोड्स ऑफ मेल. एंड यू सी देखो मेल रिप्रोडक्टिव में देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, फैलिक ग्लैंड है, ट्यूब्यूल्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, समाइनल वेसिकल है टू सिक्रीट अ विस्कस फ्लूइड, वास्ट डिफरेंस है. Then there is ejaculatory duct. So if you see, all the typical organs of male reproductive system are present in male cockroach. Then this is female. If you see that there is a pair of ovary, and then there is oviduct, there is common vagina, collateral glands are there. This is genital chamber. Can you see? This is genital chamber. Also, genital chamber and lower portion is known as vestibulum. It is also known as genital pouch. Then there is a small, this structure is there known as spermatheca. Spermatheca stores the sperms in the body of the female. So, in this way, if you see, their reproductive system is well developed. Fertilization in case of arthropods is internal. Generally, arthropods are oviparous. That means they lay eggs, except scorpions, which are viviparous. Right? If you see, their egg is centrolecital. Eggs of arthropod is centrolecital. इसका मतलब क्या? centrolecital का मतलब जैसे ये egg है, their yolk is placed exactly, located exactly in the center, इसीलिए इसको बोलते हैं centrolecital. और जो and this is the egg, fertile zygote. जब cleavage होता है तो कैसे होता है? Superficial, because see, and it is meroblastic. क्लीवेज हुआ, बीच में क्या आ गया? योग आ गया, यहाँ पर डिवीजन नहीं हो सका, यहाँ पर हुआ. फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गया, बीच में नहीं हुआ. तो इस तरह के जो डिवीजन को क्या बोलेंगे? मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक नहीं है, मीरोब्लास्टिक है, पार्शल है. सो दिस वे इफ यू सी, तो जितनी भी प्लास्टोमियर्स बनती हैं वो कहाँ बनती है? पेरीफेरी की तरफ. ये जो ब्लास्टोमियर्स है, और सेंट्रल में क्या होता है? योग होता है. सो इफ दिस वे इफ यू सी, इस तरह के को क्या बोलते हैं? सेंट्रोलेसिथल एग. एंड सच टाइप ऑफ इफ यू सी क्लीवेज है, इस तरह की क्लीवेज को बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज. बिकॉज डीप तो जा ही नहीं रही है, केवल ऊपर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है. जो एनिमल डेवलप करता है वो इस तरह जो है ऊपर वाले ये जो ब्लास्टोमियर्स है यहाँ से डेवलप करता है. नाउ वी कम टू डेवलपमेंट. क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ वेरिड हैबिटेट, वेरिड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. डेवलपमेंट भी आप देखो, इट इज़ वेरिड. Development can be direct, it can be indirect, right? Direct development में if you see, direct development का मतलब क्या है कि जो there is no larval stage. क्या होता है कि जो young one को बोलते हैं, जैसे कॉकरोच है, nymph. ये nymph जो है क्या होती है? मोल्टिंग होती है, यानी कि फैली मोल्टिंग हुई, फिर nymph थोड़ा सा बड़ा सा हुआ, 2, then again nymph after molting, nymph 3. This way, after each molting, the nymph grows, and by the time it reaches in the end, it resembles the adult one. So such type of development where the young one resembles the adult organism, हम उसको कहते हैं direct development.
नाउ कम्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि देयर इज लार्वल स्टेज. और ऑर्थ्रोपोड्स में अलग, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का लार्वा है, ऑर्थ्रोपोड में अलग अलग लार्वा है. जैसे कि इफ़ आई टेल यू, जैसे हाउस फ्लाई है या डिप्टेरेंस है. हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा. इसके यंग वन को बोलते हैं मैगट. और बीटल्स है, बीटल्स के यंग वन को बोलते हैं ग्रब. और मॉस्किटोज के लार्वा को क्या बोलते हैं? रिगलर. और जो ड्रैगन फ्लाई है उसके लार्वा को बोलेंगे नायाड. करेक्ट. और बटरफ्लाई के, जो कि आप सबको ही पता है, बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. So this way, if you see, in case of indirect development, so many larval stages are there depending on the order. जैसे हाउस फ्लाई है, वो तुम्हें वैसे याद करने की जरूरत नहीं, डिप्टेरा को बिलोंग करता है. बीटल जो है कोलियोप्टेरा को बिलोंग करता है ऑर्डर को. मॉस्किटो जो है ये भी डिप्टेरा को बिलोंग करता है, राइट. और इस तरह जो है ड्रैगन फ्लाई फाजमिडा को बिलोंग करता है. बटरफ्लाई जो है लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करती है. अलग अलग ऑर्डर है और हर ऑर्डर का जो लार्वल स्टेज है उसका जो नाम है वो अलग अलग है. करेक्ट. नाउ इन केस ऑफ इसी तरह जो है क्रस्टेशियंस है, ये तो मैंने ये सारे किसके बताए? इंसेक्ट्स के बताए हैं. क्रस्टेशियंस में भी जो है डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है. उनकी जो लार्वल स्टेजेस है वो अलग अलग हैं. जैसे उनको जोइया लार्वा, उनके लार्वा को बोलेंगे जोइया लार्वा या प्रोटोजोइया. You can call it as Cypris, Mysis, Megalopa larva, Alima, Phylosoma. So ये जो है अलग अलग लार्वल स्टेजेस है अलग अलग क्रस्टेशियन में, राइट. अब आप ये तो कोई जितने भी लार्वा होते हैं, लार्वा जो है क्या होता है उनका मेटामॉर्फोसिस होता है. अडल्ट में बनने से कन्वर्ट होने से मेटामॉर्फोसिस भी जो अलग अलग तरह का होता है, वो हम इसको हालांकि सेपरेट टॉपिक लेंगे. जस्ट अभी मैं आपको बताती हूँ पोरा मेटामॉर्फोसिस या पोरा मेटाबॉली. इसका मतलब क्या है? ग्रेजुअल. जैसे कि एक तरह से इसमें हमने कॉकरोच में देखा था ना, ग्रेजुअल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बाद में जो है वो अडल्ट में हो रहा है. एक तरह से डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले मेटाबॉलिज्म को हम बोलेंगे पोरा मेटाबॉली. सेम वे हेमी मेटाबॉली. हेमी मेटाबॉली में क्या होता है? जैसे कई बार लार्वा जो है वो एक्वेटिक होता है और अडल्ट जो है टेरेस्ट्रियल होता है. तो एक्वेटिक लार्वा को गिल्स है या दूसरे स्ट्रक्चर शट ऑफ करने पड़ते हैं. इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को बोलेंगे हेमी मेटाबॉली, राइट. और जिसमें जो है कंप्लीट जो है लार्वा अलग होता है और जो उसकी जो स्ट्रक्चर वो एकदम रिजेंबल नहीं करता, उसको बोलेंगे होलो मेटाबॉली. सो इस तरह अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फोसिस हैं, राइट. अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इफ़ यू सी, जो हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं पेरेंटल केयर. पेरेंटल केयर आपने देखा एंड्स हैं, हनी बीज में है, इसमें काफ़ी अच्छी तरह से नोटिस की जा सकती है. सो दिस इज अगेन यहाँ फ्रॉम दिस फाइलम ऑनवर्ड इफ़ यू सी पेरेंटल केयर इज ऑल्सो सीन फॉर द यंग वंस. अच्छा, एक और एक चीज़ है जो हम रिप्रोडक्शन में देखें, पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं. अब आप देखो पार्थिनोजेनेसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है हनी बीज. हनी बीज जो है इफ़ यू सी मेल ऑफ द हनी बी को बोलते हैं ड्रोन और फीमेल को बोलते हैं क्वीन, ठीक है. हालांकि जो वर्कर्स होते हैं वो भी फीमेल होते हैं बट दे आर स्टराइल, दे कैन नॉट ले एग. तो क्वीन जो है ये फीमेल गैमेट ले करती है और ड्रोन जो है वो मेल. बट ड्रोन जो है अगर हम देखिए हैप्लॉइड ही होता है, तो इसका जो गैमीट है इट डज नॉट अंडरगो मियोसिस. जो ये विदाउट मियोसिस अपना गैमीट प्रोड्यूस करता है. फीमेल जो है ये डिप्लॉइड होती है और इट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट, हैप्लॉइड गैमीट. तो आप देखो ये एन गैमीट बना, ये एन गैमीट बना. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनेगा?
Z2N, जो कि फीमेल ही होगी. But sometimes what happens that this queen, if you see the eggs of the queen, they do not fertilize. तो ये eggs जो कि फर्टिलाइज नहीं करते हैं, क्वीन की बॉडी में जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स ले किए जाते हैं, दे डेवलप इनटू ड्रोन. राइट. तो ड्रोन जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पार्थेनोजेनेटिकली. करेक्ट. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल जस्ट वो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू दैट कुछ ऑर्थ्रोपोड्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाई पार्थेनोजेनेसिस. एफिड्स भी जो है इंसेक्ट्स हैं, ये भी पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. नाउ अगर हम एक बार पूरा रिकैपिचुलेट करें कि हमने क्या किया है, तो जस्ट व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, आपकी बुक में भी दे रखा है, ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, वो हम 1 by 1 लेंगे ताकि एक बार आपका रिकैपिचुलेशन हो जाए. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज जॉइंटेड अपेंडेजेस. अब आपको पता है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या होती हैं. पोडोमियर्स होते हैं, वो अलग अलग जॉइंट्स से अटैच्ड होते हैं. प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन. आपको बताया था ना कि जो इनकी एक्सोस्केलेटन है किस चीज़ की बनी हुई है? प्लेट्स की बनी हुई है, नोन एज स्क्लेराइट, which is made up of chitin. Right? These are the first animals to have voluntary muscles below body wall. राइट. बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में या फिर 2 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन, या सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमिन, या हेड एंड ट्रंक. इस तरह जो है बॉडी में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स. अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा माउथ पार्ट्स का, अलग अलग माउथ पार्ट्स वो है किस तरह मॉडिफाइड है. बेसिक माउथ पार्ट सारे ही प्रेजेंट है, बट सारे पार्ट जो है अलग अलग वे में मॉडिफाइड है टू सूट द फीडिंग हैबिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वाज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन आपने देखा, लिटरली रेस्पिरेशन जो है ट्रैकिया से भी हो रहा है, गिल्स से भी हो रहा है, राइट, बुक लंग से भी हो रहा है, और बुक गिल से भी हो रहा है. नेक्स्ट वॉज एक्सक्रीशन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है, ग्रीन ग्लैंड है, कॉक्सल ग्लैंड है, दे वर कैरिंग आउट excretion. Then they have open type of circulatory system, arthropods. ठीक है. उनकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील. क्यों? क्योंकि उनकी सीलोम में क्या होता है? ब्लड होता है, इसलिए बॉडी कैविटी को ही हीमोसील बोलते हैं. Another characteristic feature, if you see, is their brain is also known as circumesophageal ring, जो कि ब्रेन जो है 3 लोब्स का बना हुआ है, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम एंड ट्राइटोसेरेब्रम. अनदर इफ यू सी सेंस ऑर्गन्स में अगर हम देखें, कंपाउंड आइज आर वेरी वेल डेवलप्ड. They have various omitted ear joined together to form one compound eye, and they have a pair of compound eyes. They have antenna on their head. Another characteristic feature is males, if you see, they have gonopods, females have gonapophysis, and they undergo metamorphosis of varying degree. अभी हमने बताया था ना, parametaboli, hemimetaboli, holometaboli. So this way arthropods, they have varying degree of metamorphosis. I think this is all for today, and this is all for general characters of phylum Arthropoda.